Hello everyone, so today we have got this. This is called Pani Akhya in our local Odia language, and in English it is called as, I think, Indo-Pacific tarpon. And some megalops cyprinoids is the scientific name for this fish. It is a very good fish which is rich in omega-3 fatty acids, and this is really a good one for the cardiac disorder. So it smells a bit fishy, but if you prepare it properly, it tastes really awesome and it is really good when we compare with other rohu fish and all. So yeah, let's prepare this today. For this I have cleaned it properly and added some turmeric, chili powder, salt, lemon juice and mustard oil to it, and let's just mix them all together and marinate this fish. So let's start. For the masala, I have already prepared one ginger garlic, tomato and green chili paste separately, and this is the main ingredient as in masala. We have to soak some mustard, some, like, if you're taking whatever amount of mustard you're taking, you have to take half the amount of jeera or cumin, and along with that 2 or 1, how much you like the chilies, that much of red red chili, and soak them like for half an hour. Uske baad we have to make a paste out of it. So let's soak this and start the procedure of frying our fishes. तो मैंने गरम कढ़ाई में कुछ ऑयल लिया है फिश फ्राई करने के लिए. ये जो भी लाइक ब्लैक दिख रहा है, दैट इज कल मैंने कुछ तला था, सो उसका लेफ्ट ओवर है, सो नथिंग टू वरी अबाउट इट. सो लेट्स फ्राई आवर फिशेस इनटू इट वन बाय वन. So my dear Mr. husband is making the fish fry today because मुझे फिश फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता है, और ये वाला फिश तो बहुत ही ज़्यादा डर लगता है. So he is frying the fish for me, but yeah, the recipe is mine, not his, so please give the credits to me, not to him. So this is being fried. दोनों साइड से हमें अच्छे से इसे फ्राई करना है ताकि दोनों साइड से कुक हो जाए और ब्राउन पैचेस हो जाए. तो जैसे कि मैंने कहा था, इसे हम दिस इज लोकल फिश ऑफ उड़ीसा. ये एक सी वाटर फिश है और सॉल्टी वाटर फिश है. तो ये बहुत अच्छा टेस्ट भी करता है एज पर माई हस्बैंड, बिकॉज आई हैव ईटन इट, बट मुझे याद नहीं है, मतलब मुझे प्रॉपर फिश में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती. सो ही सेड दैट इट इज़ रियली गुड इन टेस्ट, बट लेट्स सी. तो ये इसका लोकल नेम इज कॉल्ड एज Pani Akhya because the eyes of the fish looks like pani. We call, like in Odia we call water as pani, so the watery eyes, so it is called as Pani Akhya, and big eyes, as you can see there the eyes. So my husband, being Khatarone Ke Khiladi, has turned the fishes. I'm proud of him for that. Okay, so let's continue about the fish. As I told you, it is really good in omega-3 fatty acids, which is good for your heart. And if you're having cardiac disorders, then please go for this fish. It is really nutritious as well as tasty. तो बहुत हो गया हमारे ज्ञान की बातें. लेट्स कंटिन्यू फॉर आवर रेसिपी. या लेट्स फ्राई इट. एज यू कैन सी, फिश बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है दोनों साइड से. अब हम इसे निकालते हैं प्लेट पे अलग से. सो दिस इज बीइंग रिमूव फ्रॉम द कढ़ाई. अच्छे से आराम से हल्के से प्लेस इट ऑन अ टिश्यू. एक्सेस ऑयल रिमूव होने के लिए. लेट्स डू विद द रेस्ट ऑफ द फिशेस वन बाय वन. So this is all our fishes fried by my husband. So yeah, let's prepare the curry. तो हम जो फिश करी बनाएंगे तो उसमें हम आलू का भी यूज़ करेंगे. लाइक वी ओडिया लव आलू इन ऑल आर नॉन वेज डिशेस ऑलमोस्ट. तो इसमें मैं आलू डालूंगी. तो मैंने 2 आलूओं को ऐसे लंबा करके काट के अभी हम उसे उसी ऑयल में थोड़ा सा हल्का फ्राई कर लेते हैं. सो एडिंग द पोटैटोज टू द हॉट ऑयल. तो जब तक हमारा पोटैटोज फ्राई होता है ऑयल में, तब तक हम 2 प्याज को चॉप कर लेते हैं. और जो मैंने सोक किया था मस्टर्ड एंड जीरा विद ड्राई रेड चिली, उसके साथ 2 टमेटोज़ को हम ग्राइंड करेंगे. एंड दीज आर 2 ड्राइड मैंगो, जिसे कि मैंने पानी में भिगो के रखा है. यू कैन, इफ़ यू डोंट हैव दिस, आप कर्ड ले सकते हैं. कर्ड लाइक हाफ अ कप ऑफ कर्ड, उसको अच्छे से फेंट लीजिए. दैट इज़ ऑल्सो फाइन एंड विल टेस्ट ऑलमोस्ट सिमिलर. ओके, सो लेट्स डू क्लीन ऑल ऑफ दीज एंड पुट देम इनटू फॉर्म. सो लेट्स चेक फॉर आवर पोटैटोज. अच्छा सा पक गया है. इसे हम रिमूव कर लेते हैं ऑयल से. सो हियर वी गो विथ ऑल आवर पोटैटोज फ्राइड एंड फिश फ्राई. लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर ऑफ द करी. सो फॉर द प्रोसीजर ऑफ करी विल स्टार्ट ऑन विथ द सेम ऑयल जो भी था, क्योंकि मैंने ज़्यादा ऐड कर लिया था, तो उसी में बनाएंगे और हम ऑयल ऐड नहीं कर रहे हैं. तो उसमें हम सबसे पहले ऑयल गर्म होते ही हम उसमें डालेंगे जीरा और एक ड्राई रेड चिली. तो
जीरा और मिर्च थोड़ा सा तड़कने के बाद या फिर छिड़कने के, वॉट एवर द वर्ड इज, स्प्लटर होने के बाद हम उसमें डालेंगे चॉप्ड अनियन जो हमने चॉप किए थे थोड़ा सा। नाउ विल जस्ट फ्राई द अनियन विथ ऑयल। तो हमारा अनियन ट्रांसलूसेंट हो गया है। विल जस्ट ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक और मैंने कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिली का पेस्ट तो इट। अभी इसे भी हम अनियन के साथ अच्छे से मिला लेते हैं। एंड दिस इज़ आवर मस्टर्ड, टमेटो, जीरा एंड ड्राई रेड चिली का पेस्ट रेडी। अच्छे से देखिए, इसे इतनी बारीकी से पीसना है ताकि मतलब इट इज़ बेटर टू रिमूव द मस्टर्ड सीड्स का जो छिलका होता है, इसको अगर हम स्टेन करते हैं वो भी बेटर रहेगा, बट वी कैन यूज़ इट लाइक दिस ऑल्सो, बट दैट इज़ अ गुड ऑप्शन। अगर आपका कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो वो आप इसे स्टेन कर सकते हैं। तो दिस इज़ इट। इसको बहुत अच्छे से स्मूथली अच्छे से पेस्ट बनाएंगे एंड या लेट्स प्रोसीड। ना अदरक लहसुन को भूनने के बाद ऑयल और प्याज के साथ हम डालेंगे वो जो मस्टर्ड पेस्ट, सारा का सारा डालते हैं। अभी मस्टर्ड पेस्ट को भी हम इसमें मिला के भूनेंगे। तो जैसे ही आपको लगे कि इसका रॉ स्मेल जा रहा है भुनने के बाद, यू कैन ऐड इन योर पाउडर मसाला, जिसमें हमें ज़्यादा कुछ ऐड नहीं करना है। बस मैंने लिया है 1 चम्मच टीस्पून के करीब हल्दी, 1.5 टीस्पून ऑफ चिली पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। सो उसे मैं एक साथ डाल रही हूँ उस पर, बस दैट इज़ इट। अब इसमें हम देंगे हल्का सा पानी जस्ट फॉर भूनने के लिए, क्योंकि नीचे मसाला चिपक रहा है। तो ऐसे हल्का हल्का पानी लेके इसे भूनना है। हल्का सा पानी देके, किसी भी पॉइंट पे आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है, देन हल्का हल्का पानी देके इसे जस्ट भूनना है। अभी इस पॉइंट पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, क्योंकि ये करी है फिश का तो थोड़ा सा ज़्यादा नमक जाएगा। लाइक ऑलमोस्ट मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब, दैट इज़ इट। अभी इसको मिक्स करेंगे। तो मसालों को भूनने के बाद ये नोटिस कि थोड़ी देर में ऑयल ऊज आउट होने लगा है। इस वक्त हम डालेंगे इसमें ढेर सारा फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर। तो ये कॉन्सेप्ट ये है कि नॉर्मली कोरिएंडर हम एंड ऑफ द डिश, लाइक रेसिपी बनने के बाद डालते हैं, बट अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा डाल के उसको मसालों के साथ भूनेंगे तो वो उसका भी एक अलग ही मज़ा है। सो प्लीज़ ट्राई दिस। स्पेसिफिकली जब आप नॉनवेज बना रहे हैं तो दिस विल रियली लाइक मेक द टेस्ट इवन बेटर। सो प्लीज़ डू इट व्हेनेवर यू आर प्रिपेयरिंग एनी नॉनवेज डिश। अगेन इस पे हल्का पानी देंगे और कोरिएंडर को भी इसके साथ भुनेंगे एक साथ सबको ऑन अ लो मीडियम फ्लेम। तो इस बीच मैंने वाटर बॉयलर में थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। दैट इज़ ऑल्सो फॉर सम रीज़न कि गर्म पानी अगर हम करी में यूज़ करते हैं देन इट विल नॉट गिव यू द फिशी मीटी स्मेल अवॉइड हो जाता है। सो प्लीज़ अवॉइड यूजिंग नॉर्मल रूम टेम्परेचर वाटर इनटू एनी नॉन-वेज डिश एंड गो फॉर हॉट वाटर। सो एज यू कैन सी कि मसाले से ऑयल यूज आउट होने लगा है। इस पॉइंट पर हम अपना बॉइलिंग वाटर इसमें डालेंगे जितना कि आपको करी चाहिए। सो लेट्स ऐड दैट। तो मैंने पानी बॉइलिंग वाटर डालने के बाद इसको ऐसे साइड से स्क्रेप ऑफ करके थोड़ा सा और मतलब मसाले के साथ बॉईल होने छोड़ देते हैं। मसाले के साथ बॉईल होने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे इस पर। तो एज यू कैन सी द वाटर इज बॉइलिंग। इस पॉइंट पे हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली स्लिट करके। दैट जो हमने ड्राई मैंगो को सोक करके रखा था पानी में उसे भी डालते हैं। बट इफ़ यू आर यूजिंग कर्ड तो कर्ड को हमें जब मसाला भून रहे हो उसी पॉइंट पे डाल के अच्छे से मिलाना है। तो या कीप दिस इन माइंड। सो लेट इट बॉईल फॉर अनदर 1 मिनट। तो 1 मिनट बॉईल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे अपने फ्राइड फिशेस अलॉन्ग विद द फ्राइड आलू। सो लेट्स ऐड देम 1 by 1। तो आई हैव एडेड ऑल द फ्राइड फिश एंड पोटैटोज टू द ग्रेवी। अभी इसको हम कवर करके 5 से 6 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने छोड़ेंगे सो दैट कि फिश का जो भी फ्लेवर है वो ग्रेवी में मिक्सअप हो जाए एंड दिस विल टेस्ट रियली ऑसम। सो लेट्स कवर इट एंड वेट फॉर अनदर 4 to 5 minutes। सो दिस इज द फाइनल पार्ट। तो हम देख सकते हैं कि ग्रेवी हमने जितना दिया था उसमें से ऑलमोस्ट 40% रिड्यूस हो चुका है। इस पॉइंट पे लेट्स ऐड सम फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर ऑन टॉप और गैस को कर देते हैं बंद। तो दिस इज आवर करी ऑलमोस्ट रेडी। बट इसे सर्व करने से पहले 5 मिनट के लिए कवर करके बिना फ्लेम के रख लेते हैं। उससे होता यह है कि करी जो उबल रहा होता है वो थोड़ा स्टेबल हो जाता है एंड द टेस्ट बिकम्स बेटर। सो लेट्स कवर इट एंड रीओपन इट आफ्टर 5 minutes। Here is our dish ready to enjoy. Love you all.